আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। राज्य की वर्तमान सरकार संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों पर आधारित कार्य कर रही है। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविंद्र भवन में आयोजित डॉक्टर BR अंबेडकर की 135वीं जयंती के समापन समारोह के दौरान कही। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने यह भी टिप्पणी की कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न अनिच्छापूर्वक और काफी देर से प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एक बार फिर कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न बहुत देरी से दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि इस मामले में भाजपा सरकार के दौरान डॉक्टर BR अंबेडकर को उचित सम्मान दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को अंबेडकर जयंती समारोह के समापन समारोह में यह बात कही। বহু প্রতিকূলতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অপমানের বিরুদ্ধে ডক্টর BR আম্বেদকর যেভাবে কাজ করেছেন, বলতে গেলে উনি একটি ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। আজীবন নিপীড়িত মানুষদের জন্য উনি কাজ করে গেছেন এবং লড়াই করেছেন, এবং অনেক দিন পরে হলেও ওনাকে 1990 সনে অনিচ্ছাকৃতভাবে আমি বলবো, ওনাকে এতদিন ধরে ভারতরত্ন উপাধি দেওয়া হয়নি। 1990 সনে আমার পূর্ববর্তী বলেছেন যে ওনাকে ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि बजट में पिछड़े वर्ग के नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों, छोटे व्यापारियों, सफाई कार्य में लगे लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए धन आवंटित किया गया है। আমরা যারা প্রধানমন্ত্রী অনুসূচিত জাতি অভ্যুদয় যোজনা PM অজয় মাধ্যমে তপশিলি জাতি অধ্যুষিত যে গ্রামে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আমরা পোল্ট্রি শেল্টার, সোলার স্ট্রিট লাইট, বাউন্ডারি ওয়াল, ওয়াটার ট্যাঙ্ক, পাকা ড্রেন, ব্রিক সোলিং রোড এবং বক্স কালভার্ট, অঙ্গনবাড়ি নির্মাণ, তাছাড়া সাবমার্সিবল পাম্প, ক্ষুদ্র বেসের ডিপ টিউবওয়েল ইত্যাদি আমরা স্থাপন করেছি। তার জন্য প্রায় 2,73,00,000 টাকা ব্যয় হবে, এবং আমরা তপশিলি জাতিভুক্ত যে পরিবারগুলো তাদের আয় যাতে বৃদ্ধি হয় তার জন্য পোল্ট্রি, মুরগি, হাঁস পালন সংক্রান্ত একটি প্রকল্প আমরা এবার বাজেটেও সেটা আমরা এই বাজেটে গৃহীত হয়েছে। তপশিলি জাতিভুক্ত যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আছেন, যারা শুকনো মাছ এবং সবজি বিক্রি করেন, তাদেরও আর্থিক সাহায্য করার এবার আমরা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। এছাড়াও ছাত্রী নিবাসের প্রকল্প এবং প্রাক মাধ্যমিক বৃত্তি, যেটা আমাদের রাজ্য প্রকল্প, এবং যারা অপরিচ্ছন্ন কাজে নিযুক্ত পরিবার, যাদের সন্তান সন্ততির যারা আছেন, তাদেরকে কেন্দ্রের 90% এবং আমাদের স্টেটের 10% সেটা দিয়ে তাদেরকেও আমরা আর্থিকভাবে সাহায্য করার ব্যবস্থা আমরা করেছি। ডাক্তার BR আম্বেদকরের মেধা পুরস্কার কেন্দ্রীয় প্রকল্প, সেটাও আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে মার্গদর্শনে সেটা আমরা করছি। আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের আর্থিক সহায়তা, এককালীন আর্থিক সহায়তা তাদের জন্য আমরা করছি। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় তাদেরকে যে সাহায্য, তপশিলি জাতিভুক্ত আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনা, বাবু জগজীবন রাম ছাত্রাবাস যোজনার সাহায্য প্রদান, এইসব বিভিন্ন যে প্রকল্প, যেটা ডক্টর BR আম্বেদকরের যে ইচ্ছা এবং ওনার যে ভাবনা, সেটাকে সাকার করার জন্য আমাদের ত্রিপুরা সরকারও সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে করছেন দেশের জন্য, আমরাও সেইভাবে আমরা করছি। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हुए काम करने की बात राज्य की मौजूदा सरकार ने कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज अंबेडकर की 135वीं जयंती समारोह के समापन समारोह में कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर पिछड़े समुदायों के समग्र कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
आगामी मॉनसून को ध्यान में रखते हुए अगरतला नगर निगम ने शहर के कई सारे पंप के ढांचे में सुधार किया है। गणराज चौमोहनी क्षेत्र के 4 पंपों का स्थानांतरण इसमें उल्लेखनीय है। इन पंप को पहले की तुलना में 7 फीट ऊंचा करके फिर से स्थापित किया गया है ताकि जल निकासी तेजी से संभव हो सके। नगर निगम के अधिकारियों ने सोमवार को गणराज चौमोहनी में स्थापित इन 4 पंप की कार्यक्षमता का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि पंप का कार्य प्रदर्शन अत्यंत संतोषजनक है और इसके चलते शहर में जल जमाव की समस्या काफी हद तक नियंत्रित रहेगी। पिछले वर्ष मॉनसून के दौरान ये पंप जलमग्न हो गए थे, इसलिए इस बार इन्हें ऊंचा करके पुनः स्थापित किया गया है, ऐसा संबंधित अधिकारियों ने जानकारी दी है। আমরা এখানে পরিদর্শন হিসেবে আপনারা জানেন যে গতবার যে প্লাবের সময় এখানে এই গণরাজ চৌমুহনী পাম্পটা আর মহানমঙ্গনের রাস্তার যে পাম্পটা ইসপিএস এর পেছনে পাম্পটা দুটোই জলমগ্ন হয়ে গেছিল, সম্পূর্ণ জলে নিমজ্জিত হয়ে গেছিল। এবার আমরা সিদ্ধান্তে এই পুরো পাম্প হাউসের বেসটাকে আমরা প্রায় 7 ফুটের মতো আপলিফ্ট করেছি। আপলিফ্ট করে পাম্পগুলোকে আবার তুলে পাম্পগুলো আমরা বসিয়েছি। এখন এটার মধ্যে আমাদের যা আছে বৃষ্টি এলে যাতে আমরা বর্ষার আগে কাজটা আবার এর মতো জল নির্গমন করতে পারি, এই কারণে আমরা এটা উঠিয়েছি। এখানে এখন আপাতত 4টে পাম্প আছে, সাবমার্সিবল আছে, 2টো ইলেকট্রিক পাম্প আছে আর আরেকটা কম্প্রেসরের পাম্প আছে। এই 4টে পাম্পের মধ্যে আমরা 3টে পাম্প এখন চালুর মধ্যে আছে, আরেকটা পাম্প 7 দিনের মধ্যে এটা আমাদের চালু হয়ে যাবে। तिपरामौथा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सोमवार को बिलोनिया में सीमा अभियान आयोजित किया, जिसमें बल्लामुख सीमा पर बांग्लादेश द्वारा किए जा रहे अवैध बांध निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किया गया। तनाव को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। बिलोनिया बालामुख बॉर्डर पर बांग्लादेश द्वारा बांध के अवैध निर्माण को लेकर सोमवार दोपहर को बिलोनिया वन के उत्तरी तट पर तनाव व्यापक हो गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से तिपरामौथा कार्यकर्ता और समर्थक बंकर के उत्तरी तट पर एकत्रित हो गए। खबर मिलने के बाद ही पुलिस और बीएस ऑफिसर्स तथा सुरक्षा घटना स्थल पर पहुंचे। जब इस समय बालामुख बॉर्डर की ओर बढ़ने की कोशिश की तो तिपरामौथा के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कर्मियों की झड़प हो गई। मौथा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली प्रदेश की कार्यवाहक सरकार द्वारा बालामुख बॉर्डर पर बांध का अवैध निर्माण के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। को हम मदद किया ना 71 का वॉर में, पाकिस्तान से नाराज पैदा जब उन लोग का हुआ, तब यही बांग्लादेश को इंदिरा गांधी जी ने, हिंदुस्तान ने पूरा दिल खुल के फुल सपोर्ट किया था और त्रिपुरा में उन लोग को दिया। त्रिपुरा जो डेमोग्राफी चेंज हुआ, त्रिपुरा का जो डेमोग्राफी चेंज होकर जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रहे, उसी का वजह से हुआ था। और आज यही लोग हम लोग को आग दिखा रहे और यही लोग आग ही नहीं दिखा रहे, डैम बढ़ा रहे और हमारा लोग को चाइना पाकिस्तान से मिलके यहाँ पे ISI को भेज के हमारा लोग को कश्मीर में मारा, हिंदुस्तान को कश्मीर में मारा और त्रिपुरा में भी हर रोज बांग्लादेशी आ रहा है। यही लोग त्रिपुरा में भी कभी भी ये लोग घटना कर सकते हैं। त्रिपुरा माध्यम से, असम का माध्यम से कहीं भी ये लोग कभी भी घटना कर सकते हैं, कभी भी ये लोग आतंकवादी कार्य करते हैं। तो इस हम लोग विरोध करते हैं और सिर्फ विरोध ही नहीं करते। हिंदुस्तान का सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करे और कार्रवाई करके ये जो त्रिपुरा का पार्ट था, हिंदुस्तान का जो पार्ट था, उसको वापस त्रिपुरा में लाए और ग्रेटर त्रिपुरालैंड करने का कार्य उन लोग को जल्द से जल्द। बांग्लादेश सरकार इंटरनेशनल बॉर्डर एग्रीमेंट्स की अनदेखी करते हुए बिलोनिया बालामुख क्षेत्र में बॉर्डर रिजर्व लैंड की मैंस लैंड पर 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा बांध बना रही है। इस निर्माण कार्य के परिणामस्वरूप मोहनी नदी के उत्तरी तट पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र नगर और ईशान चंद्र नगर ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासियों को मानसून में जलमग्न होने का खतरा सता रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार बांग्लादेश द्वारा बनाया गया बांध 15 से 20 फीट ऊंचा और लगभग 1 से 2 किलोमीटर चौड़ा है। इमारत में जल निकासी की व्यवस्था न होने से निवासियों में दहशत फैल गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर प्रोटोकॉल के अनुसार बॉर्डर पिलर 150 गज के भीतर कोई स्थायी संरचना बनाई जानी चाहिए और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार 1 दर्जन एक्सकेवेशन मशीन्स और बुलडोजर्स का उपयोग करके 24 घंटे कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है। ऐसी ही समस्या ऊनकोटी जिले के कोलाशहर सब डिवीजन उत्पन्न है, जहां स्थानीय निवासियों ने बांग्लादेश द्वारा बांध के निर्माण को लेकर चिंता व्यक्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य सरकार ने सोमवार को निर्देश दिया कि डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का वेतन अब बायोमेट्रिक और मैनुअल उपस्थिति की पुष्टि के बाद ही दिया जाएगा। अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबी पंत हॉस्पिटल के अधिकारियों ने डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और अन्य सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक और मैनुअल दोनों तरीके से अटेंडेंस वेरिफिकेशन के बाद ही वेतन देने का फैसला किया है। अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबी पंत हॉस्पिटल के अधिकारियों ने
डॉक्टर्स और अन्य कर्मचारियों की प्रेजेंस और अवेलेबिलिटी के खिलाफ व्यापक शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने एक निर्देश में कहा कि अगरतला में एजीएमसी और जीबी पंत हॉस्पिटल के फैकल्टी, मेडिकल ऑफिसर्स और ऑफिसर्स और अन्य सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान बायोमेट्रिक और मैनुअल अटेंडेंस दोनों के वेरिफिकेशन के बाद ही दी जाएगी। राज्य सरकार ने आदेश में कहा कि संबंधित हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आरएमओ, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स, सेक्शन इंचार्ज की उपस्थिति रिपोर्ट वेरीफाई की जाएगी और हर महीने की 15 तारीख तक एजीएमसी और जीबी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को प्रस्तुत की जाएगी। राज्य सरकार ने आदेश में कहा, बायोमेट्रिक डिवाइस के खराब होने की स्थिति में बायोमेट्रिक डिवाइस के ठीक होने तक अटेंडेंस मैन्युअली दर्ज की जाएगी। राज्य सरकार ने कहा कि यह निर्णय एजीएमसी और जीबी पंत हॉस्पिटल के पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज, जूनियर रेसिडेंट्स और इंटर्न डॉक्टर्स को मंथली स्टाइपेंड देने के लिए भी लागू की जाएगी। राज्य सरकार ने एक आदेश में कहा कि राज्य भर के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर और कम्युनिटी हेल्थ फैसिलिटीज में भी यही निर्णय लागू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य में बच्चों में हृदय रोग की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से राजधानी के द्वितीय रेफरल आईजीएम अस्पताल में एक हार्ट स्कैनिंग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दूर दराज से आए बच्चों और उनके अभिभावकों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। राजधानी के सेकेंड रेफरल हॉस्पिटल आईजीएम में 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में हृदय रोग के किसी भी लक्षण की जांच के लिए निशुल्क हार्ट स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा शिविर नेशनल हेल्थ मिशन और सिजा हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित किया गया है। बच्चों की हार्ट रेट एडल्ट की तुलना में थोड़ी तेज होती है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उम्र के साथ उनकी हार्ट रेट में बदलाव आ सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि नवजात शिशुओं के लिए 100 से 160 बीपीएम की हृदय गति उपयुक्त मानी जाती है। 0 से 5 महीने के बच्चों के लिए 90 से 150 बीपीएम, 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए 80 से 140 बीपीएम, 1 से 3 साल के बच्चों के 80 से 130 बीपीएम, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए 80 से 120 बीपीएम, 6 से 10 साल के बच्चों के लिए 70 से 110 बीपीएम तक, 11 से 14 साल के बच्चों के लिए 60 से 105 बीपीएम की हृदय गति उपयुक्त मानी जाती है। डॉक्टर्स ने बताया कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज में टीडीए, वीएसटी, एएसटी, जीए, टेट्रोजी और फेलो आदि सामान्य संख्या में अधिक पाई जाती है। पीडियाट्रिशियन ने यह भी बताया कि पोस्टमार्टम हार्ट डिजीजेस में रूमेटिक फीवर इन्फेक्शन के कारण हृदय की मांसपेशियों की कार्यक्षमता में कमी आती है। कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस, कावासाकी डिजीज, कोरोना वायरस के कारण हृदय की ब्लड वेसल या कोरोनरी ब्लड वेसल में सूजन या हृदय की मांसपेशियों के खतरनाक रोग इसमें शामिल है। डॉक्टर्स ने आज बताया कि 2D कलर डॉपलर, एकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे और ईसीजी बच्चों में हृदय रोग के निदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रारंभिक जांच है। त्रिपुरा राज्य में बच्चों में हृदय रोग के उपचार और प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रणालियां मौजूद है। All the RBSK beneficiaries up to the age of 18 years. And this camp is supported by ICM Hospitals, NHM Tripura, and RBSK Tripura, and government of Tripura as a whole. And we are thankful to the government of Tripura for providing this opportunity to Caesar Hospitals. Thank you. राज्य में कई उन्नत चिकित्सा सेवाएं हैं जहां हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का सरकारी खर्च पर निदान और उपचार किया जाता है। इस मामले में राज्य सरकार कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस से पीड़ित बच्चों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में कुछ अधिकारियों की संपत्तियों के कारण अप्रयुक्त धनराशि का संचय बढ़ता जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के दौरान इस विभाग में 18% धनराशि खर्च नहीं हो पाई है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए 261.84 करोड़ आवंटित किया गया। इस मामले में विभाग लगभग 41.36 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया। इस मामले में बजट आवंटन का लगभग 16% हिस्सा खर्च नहीं हो सका। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी अप्रयुक्त धनराशि लगभग 16% का ही था। हालांकि 16% धनराशि खर्च न होने के बावजूद राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष से उससे पिछले वर्ष की तुलना में आवंटित धनराशि में 18% की वृद्धि की है। इस मामले में आवंटन बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस प्रयोजन के लिए 320.61 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आवंटित की गई। इसमें से डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन 94.86 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करने में असमर्थ रही। उच्च शिक्षा विभाग अपने बजट आवंटन पर 30% खर्च करने में असमर्थ रहा। नहीं, शिक्षा विभाग पिछले वित्त वर्ष में ईस्टर्न और नॉर्दर्न बोर्ड्स और नॉन लैप्सेबल पूल की राशि खर्च करने में भी असफल रही थी। व्यय की राशि का लगभग 3 गुना हिस्सा खर्च नहीं हो पाता है। विभाग आवंटन धनराशि में से 58.61 रुपए ही कर पाया, जबकि 1,48,48,000 से अधिक धनराशि अभी तक खर्च नहीं हो पाई है। दूसरे शब्दों में कहे तो पिछले वित्तीय वर्ष में एनईसी से प्राप्त कुल धनराशि का लगभग 72% हिस्सा अब तक खर्च नहीं हो पाया है। विभाग वित्तीय 2023-20 में भी एनईसी द्वारा आवंटित समस्त धनराशि खर्च करने में असमर्थ रहा था। लगभग 19% धनराशि खर्च नहीं हो सका। शिक्षा विभाग को आवंटित अप्रयुक्त एनईसी फंड की राशि पिछले वर्ष 4 गुना बढ़ गया। केंद्र सरकार के फंडिंग के एक क्षेत्र के बारे में भी यही बात सत्य है। राज्य सरकार को वित्तीय 2023-24 में NLCPR, जिसे नॉन लैप्सेबल पूल के रूप में जाना जाता है, से कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.11 करोड़ रुपए का व्यय दर्शाया गया था, परंतु 1.46 करोड़ रुपए की आर्थिक धनराशि अभी तक खर्च नहीं हो पाई है। इस मामले में अप्रयुक्त धनराशि का प्रत्यक्ष लगभग 44% का है। जानकार सूत्रों के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के कुछ नौकरशाहों और अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी के कारण आवंटित धनराशि दिन ब दिन खर्च नहीं हो पा रही है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा विभाग पर बुरा असर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। ये जानकारी त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर दी है। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित 2025 हायर सेकेंडरी मदरासा फैजल और मदरासा अलीम एग्जाम के रिजल्ट्स 30 अप्रैल को प्रकाशित किए जाएंगे। टीबीएससी ने एक अधिसूचना में यह बात कही। রেজাল্ট আমরা পাবলিশ করব আগামী 30 এপ্রিল দুপুর 12টায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কনফারেন্স হলে অফিসিয়ালি এই বছরের ফল প্রকাশ করা হবে দুপুর 12টায়। আর ফল প্রকাশের পর মার্কশিট আমরা অন্যান্য বছরও দিয়েছি। যথাসম্ভব আমি চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি মার্কশিট দেওয়া যায় 4-5 দিনের মধ্যে। এখানে একটা কথা থেকে যায় যে আমরা ফল প্রকাশের দিন মার্কশিট কেন দিচ্ছি না। গত বছর বা এর আগের বছর আমরা রেজাল্টের 5-6 দিন বা 7 দিনের মাথায় আমরা মার্কশিট দিয়ে দিয়েছি। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने घोषणा किया है कि परिणाम बुधवार 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे बोर्ड ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि टीबीएससी की 2025 कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हुई थी। इस मामले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं 22 मार्च को समाप्त हो गई, जबकि माध्यमिक 18 मार्च से समाप्त हुई। इस वर्ष उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिए कुल अभ्यर्थियों की संख्या 25,345 की थी, जबकि माध्यमिक परीक्षा के लिए कुल अभ्यर्थियों की संख्या 3,732 की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। एनडीआरएफ ने आगामी मॉनसून सीजन की तैयारी के लिए असम, त्रिपुरा और मिजोरम में बड़े पैमाने पर अभ्यास किया है। इस मामले में यह अभ्यास त्रिपुरा में गोमती नदी के किनारे के क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। मॉनसून सीजन से पहले आपदा तैयारियों को बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में गुवाहाटी के पदगांव स्थित नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने असम, त्रिपुरा और मिजोरम के 3 जिलों में गहन मॉनसून तैयारी और मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज का आयोजन किया है। एनडीआरएफ की फर्स्ट बटालियन के कमांडेंट एचपीएस कांधारी देखरेख में पैमाने पर आयोजित इस मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज में 18 टीम्स ने भाग लिया। इस अभ्यास में 550 से अधिक रेस्क्यूअर्स ने भाग लिया, जिसमें विमेन रेस्क्यू वर्कर्स और डॉग स्क्वाड्स भी शामिल थे। टीम को निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक तैनात किया गया, जिससे
उच्च स्तर का प्रदर्शन सुनिश्चित हुआ। यह अभ्यास पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ पानी में बचाव स्थितियों का अनुकरण करता है। असम के सोनापुर में मिनी स्टेडियम, त्रिपुरा में गोमती नदी के तट पर और मिजोरम के चुंगतलांग गांव को अभ्यास के लिए रणनीतिक स्थानों के रूप में चुना गया। यह अभ्यास में रैपिड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रभावित व्यक्तियों को निकालने तथा ग्राम एवं शहर दोनों ही क्षेत्रों में प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्विसेज के प्रबंधन पर जोर दिया गया। एनडीआरएफ ऑफिशियल्स ने बताया कि इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य एनडीआरएफ टीम्स की परिचालन तैयारियों का आकलन करना और बाढ़, भूस्खलन और भूकंप जैसे विभिन्न आपदाओं से कुशलतापूर्वक निपटने की उनकी क्षमता को मजबूत करना। इस अभ्यास में सीमलेस डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम सुनिश्चित के लिए इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का भी प्रशिक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 विनाशकारी बाढ़ के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश से 11 नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम दी थी। इस मामले में सामग्री के साथ 120 मेंबर एनडीआरएफ टीम्स को त्रिपुरा में तैनात किया गया। पिछले अगस्त में विनाशकारी बाढ़ के दौरान एनडीआरएफ की कुल टीम्स ने बचाव और राहत अभियान चलाया था। रिपोर्ट न्यूज। तीव्र गर्मी के बीच सोमवार सुबह की बारिश ने राज्यवासियों को राहत दी। पिछले कुछ दिनों से तीव्र गर्मी के कारण लोग परेशान थे और तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, लेकिन सोमवार सुबह बारिश शुरू होने पर स्थिति में सुधार हुआ। सोमवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जैसा कि मौसम विभाग ने बताया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर त्रिपुरा के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও।